সিজেপির তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে 10 দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হলো 4টি মূল দাবি সহ। এখানে বামপন্থী নেতৃত্ব আপনারা এসেছেন, একই সঙ্গে এসেছেন। আপনাদের কি পৃথক কোনো দাবি রয়েছে না? পৃথক কোনো দাবি নয়, এটা যেটা বললেন আশুতোষ, তার সঙ্গে খালি একটা সংযোজন করছি। এটা আশুতোষও এটা বলবে পরে আবার যখনই হবে, কোনো কারণে বলার সময় মিস হয়ে গেছে। তা হচ্ছে, আপনারা জানেন যে আব্দুল সবার আগে স্কুলে গিয়ে স্কুলের যিনি হেডমাস্টার কাশীনাথ দে, না ওনার নাম কাশীনাথ দে, তার কাছে গিয়ে বলেছিল যে আমরা দেশ জুড়ে সিজেপির ডাকে এরকমভাবে আমাদের এলাকার স্কুলগুলোর কি অবস্থা, সরকারি স্কুলের কি অবস্থা, তাই নিয়ে আমরা একটা সিটিজেন্স ভিজিলেন্স, আমরা একটা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তা একটা দেখতে চাই। আমরা খালি স্কুলটা দেখতে চাই কী অবস্থায় স্কুলটা চলছে। একজন হেড স্যারকে এইটুকু কথাও বলেছিল। পরের দিন যখন ও স্কুলটাকে দেখতে গেল তখন ওর জন্য বিজেপির গুন্ডারা ওখানে অপেক্ষা করছে। কারা এই একটা সাধারণ একটা সোশ্যাল ভিজিলেন্সের দাবিতে কারা এখানে বিজেপির গুন্ডাদেরকে ডেকে আনলো? এখানে কাশীনাথদের ভূমিকা কি সেটাকেও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশের ভূমিকার কথা তো আশুতোষ বললেন, এবং হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ, সেই সিসিটিভি ফুটেজকেও বাজেয়াপ্ত করে যে কথাটা বলা হলো যে অনেকে যারা মেরেছিল ওরা যাদেরকে চেনে, আব্দুলের মা চিনতে পেরেছেন, আব্দুল চিনতে পেরেছে, এদের নাম বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা বাদ দিয়েও যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের ফুটেজ সিসিটিভিতে এখনও পাওয়া যেতে পারে। হাসপাতালের ইন্দাস হাসপাতালের ওই সিসিটিভি ফুটেজকে বাজেয়াপ্ত করে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এবং দেখুন, আপনাদের একটা কথা বলছি, শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে খুব গুন্ডাদমন আইন করে লাফিয়েছিল। বলতে খারাপ লাগে, কিন্তু আপনাদেরও অনেকে তখন মনে করেছিলেন যে দারুণ একটা আইন আসছে, ক্রাইম হওয়ার আগে 1 বছরের জন্য জেল হয়ে যাবে, বিরোধীরা হেভি জব্দ হবে। কিন্তু আজকে তাকিয়ে দেখুন পশ্চিমবাংলায় সত্যি গুন্ডা কারা পোষে। পশ্চিমবাংলায় কি আব্দুল গুন্ডা, যে ছেলেটা তার এলাকার স্কুলের উন্নতি চেয়েছিল? বাংলায় কি আব্দুল গুন্ডা, যে আব্দুল নিজের বাবাকে হারানোর পরে, ওর মা নিজের স্বামীকে এরকমভাবে খুন হতে দেখার পরে মা আর ছেলে মিলে বলছে, দেখছেন ওদের বাড়ির অবস্থা, দেখছেন যে রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে আসলাম সেই রাস্তার অবস্থা আপনারা দেখেছেন। এই ঘরে দাঁড়িয়ে তার মা আর ছেলে বলছে যে আমাদের নিজের পরিবারের জন্য একটা 9 পয়সা ক্ষতিপূরণ চাই না, আমরা ক্ষতিপূরণ নিতে অস্বীকার করছি, যেন সরকারের ওই ক্ষতিপূরণের টাকায় আমাদের রাজ্যের ছেলে মেয়েদের জন্য একটা সরকারি স্কুল তৈরি হয়, আন্তর্জাতিক মানের সরকারি স্কুল তৈরি হয়। তাহলে স্কুল চাই যে ছেলেটা, সে কি গুন্ডা? নাকি স্কুল চাওয়ার জন্য যারা পিটিয়ে মেরে ফেললো সেই শুভেন্দু অধিকারীর দলের মণিমাণিক করা সত্যিকারের গুন্ডা? সেই গুন্ডাদেরকে বাংলায় কে দমন করবে? এবং দেখুন, একটা কথা আপনাদেরকে বলছি, আজকে পশ্চিমবাংলায় গত 10 বছরে 15 বছরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা কী হয়েছে আমরা সবাই জানি। স্কুলগুলোর এই যে অবস্থা হয়েছে, আজকে এমন তো নয় যে 3 মাস হলো যে সরকার এসছে সেই সরকারকে কেউ দায়ী করছে পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুল খারাপ হওয়ার জন্য। আমি খুব খোলা মনে এটা বলছি, এই সরকার তো সবে দায়িত্ব নিয়েছে, এরা তো সবে কাজ করতে শুরু করেছে। আজকে পশ্চিমবাংলার সরকারি স্কুলগুলোর এই বেহাল অবস্থা তো গত 10-15 বছরে হয়েছে। সেই কথা বলে তো বিজেপিও গত বিধানসভা ভোট লড়েছে। তাহলে সেই অবস্থাকে নিয়ে যদি আজকে আব্দুল কথা বলে, তাহলে ওকে মারার দরকার কি, ওর বাবাকে পিটিয়ে মারার দরকার কি? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে বিজেপি চায় না আমাদের দেশে আদৌ এডুকেশন নিয়ে কথা হোক। বিজেপি চায় না আমাদের দেশে পাবলিক এডুকেশন, সরকারি শিক্ষা নিয়ে কথা হোক। এই 1 মিনিট বিজেপি চায় না আমাদের দেশে পাবলিক এডুকেশন সিস্টেম, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা হোক। বিজেপি চায় না আমাদের দেশে পাবলিক হেলথ সিস্টেম, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সরকারি হাসপাতাল নিয়ে কথা হোক, রাস্তাঘাট নিয়ে কথা হোক। কালকে হিন্দু মুসলমান ইমাম ভাতা হবে না পুরোহিত ভাতা হবে, পুজো কমিটি টাকা পাবে নাকি মহরম কমিটি টাকা পাবে, এই নিয়ে রাজনীতি হোক, বিজেপি সবার আগে চলে আসবে। আর একটা ছেলে এসে ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতা, মহরম আর মহরমের তাজিয়া আর পুজো কমিটির চাঁদা এইসবের বাইরে গিয়ে এলাকার স্কুল নিয়ে কথা বলছে, মানে তার থেকে বড় অপরাধী কেউ নেই। তাকে চড়াও হয়ে তাকে মারতে হচ্ছে, তার বাবাকে মেরে ফেলতে হচ্ছে। ওর গলার দাগ আপনারা দেখছেন, শাবল দিয়ে গলায় মারা হয়েছে। আপনারা জানেন একটা কারুর গলায় যদি এইভাবে শাবল দিয়ে মারা হয় কি উদ্দেশ্যে মারা হয়ে থাকে? বলুন তাহলে গুন্ডাটাকে গলায় শাবলের দাগ দিয়ে যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, এই গলার অপরাধটা কি? এই গলা দিয়ে শিক্ষা নিয়ে কথা বেরোচ্ছিল, এই গলার কণ্ঠস্বরে শিক্ষার দাবি ছিল। তাহলে এই ছেলেটা গুন্ডা, নাকি যারা এই শাবলের দাগটা দিয়েছে, যাদের হাতে শাবলটা ছিল তারা গুন্ডা? ওই গুন্ডাদেরকে দমন করার আইন পশ্চিমবাংলায় কে আনবে? मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बनाए, बना के दिखाए, वो मेरे पापा के नाम पे हो। इस समय जिस गांव में है वहां अंदर आने का रास्ता आप लोगों ने देखा होगा
किस तरह यहाँ पे ना कोई सड़क है ना कोई सिस्टम है, पूरी सड़क पे कीचड़ हुआ है। इस गांव काड़ीशुंडा से बांसुरा बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये गांव पड़ता है, वहां से एक लड़का अब्दुल 18 जुलाई को जंतर मंतर के लिए निकला था, इस उम्मीद में कि आज देश में पहली बार शिक्षा की बात हो रही है। अब्दुल जंतर मंतर पर जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तब तक मौजूद रहा, लेकिन वापस आने के बाद यहां का जो भाजपा का एमएलए है निर्मल धारा, उसने और उसके गुंडों ने अब्दुल को धमकाना शुरू किया। अब्दुल को इन लोगों ने आतंकवादी बोला, पाकिस्तानी बोला। जब हमारी स्कूल ठीक करो कैंपेन की शुरुआत हुई तो अब्दुल ने कहा कि वो शिक्षा सुधार के हमारे इस मुहिम में साथ रहेगा और वो सिर्फ इस गांव के हेडमास्टर से काशीनाथ डे, जो खुद भाजपा का एजेंट है, उनसे परमिशन मांगने गया था कि आप परमिशन दे दीजिए, मैं स्कूल देखना चाहता हूं, मैं स्कूल ऑडिट करना चाहता हूं और किस तरह से हमारे गांव का सरकारी स्कूल ठीक हो सके इस बारे में बात करना चाहता हूं। लेकिन इस घटना के बाद काशीनाथ ने भाजपा के गुंडों को इन्फॉर्म किया और जैसे अब्दुल घर पहुंचा, भाजपा के गुंडों ने सबसे पहले तो घर की लाइट काटी और उसके बाद पूरे परिवार पर हमला किया। अब्दुल के आप ये निशान देख सकते हैं। आप सोचिए कि जिसके गले में सरिये के निशान है वो गुंडे क्या सोच कर आए थे। बीच बचाव करने जब पिताजी आए तो उनको भी मारा। इसके बाद भी, इस घटना के बाद भी इंडस पुलिस थाने की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना प्रोटेक्शन के ये परिवार अस्पताल जाता है। अस्पताल में भी भाजपा के 200-300 गुंडे इंतजार कर रहे थे। वहां पे फिर से अब्दुल को और उसके पिताजी को इन्होंने मारा। बंदूक लेकर आए थे, चाकू मारने की भी कोशिश की, लेकिन इस समय पूरे टाइम पुलिस गायब थी। अब्दुल का परिवार जब पुलिस थाने कंप्लेंट लिखाने गया तो भाजपा के गुंडों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया। अब्दुल क्या चाहता था? अब्दुल चाहता था कि इस देश में शिक्षा की बात हो। बंगाल के स्कूल, पिछले कुछ सालों में बंगाल में 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बांकुड़ा जिले में 200 स्कूल्स बंद हुए हैं। अब्दुल चाहता था कि स्कूल इसके जिले में भी सुधरे, इसके गांव में भी सुधरे। अब्दुल ने बताया कि जब वो यहां से जा रहा था जंतर मंतर के लिए तो उसके पिताजी ने ये कहा कि तुम देश के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम जाओ। अब्दुल के पिताजी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपने बच्चे को आगे किया कि वो आगे बढ़कर इस देश में शिक्षा की बात करे। उसको भाजपाई पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। असली आतंकवादी भाजपा के वो गुंडे हैं जिन्होंने अब्दुल को और उसके परिवार के साथ इस तरह की मारपीट की, इस तरह की गुंडागर्दी की। भाजपा जिसमें इतना दम नहीं है कि 2 मिनट शिक्षा के मुद्दे पर बात कर सके, जो स्कूल सुधारने के मुद्दे पर काम कर सके, उसको सिर्फ एक चीज आती है, गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, हिंसा करना, आतंकवादी बोलना, पाकिस्तानी बोलना। हमने बहुत डिटेल में अब्दुल से, इनकी जो मम्मी है उनसे बात की अभी, और दीपके ने भी अभी अब्दुल से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। आज से अब्दुल हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है।
ना सिर्फ सीजेपी की बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। और इस देश में हर वो व्यक्ति जो शिक्षा सुधारने के लिए लड़ रहा है, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। हम भाजपा के गुंडों से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब और नहीं चलेगी। जितने भी लोग भाजपा के गुंडे चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि उनकी गुंडागर्दी मारपीट से हम डर जाएंगे, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम वोट मांगने तो नहीं आए थे। अब्दुल वोट मांगने तो नहीं गया था। अब्दुल स्कूल ठीक कराने की बात करने गया था। ये इतने बेशरम लोग हैं कि घटना के 2 दिन बाद जब उनको पता पड़ा कि हम लोग अब्दुल से मिलने आ रहे हैं, तो इन्होंने उसी स्कूल को चमका दिया। क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती थी? क्या ये स्कूल पहले नहीं सुधारा जा सकता था? लेकिन स्कूल सुधारने की बजाय भाजपा ने गुंडे भेजना ज्यादा ठीक समझा। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है, ये हम बता दे रहे हैं। रांका जी, बहुत डिटेल में अभी हमारे परिवार से बात हुई है। हम बंगाल सरकार से 4 मांग इस समय रख रहे हैं। सबसे पहली चीज, एफआईआर में अभी भी लगभग 10 के आसपास अनआइडेंटिफाइड गुंडे हैं जिनका किसी भी प्रकार की डिटेल पुलिस द्वारा ली नहीं गई है और वो पूरी तरह से गायब है। हम बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सभी धाराएं जो इन गुंडों पर लगती हैं वो धाराएं लगाई जाए। जिस तरह का बर्ताव अब्दुल और उसके परिवार के साथ अस्पताल में हुआ, पुलिस थाने में हुआ, उसमें बहुत साफ होता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इंदस पुलिस थाने का भाजपा के गुंडों को संरक्षण था। तो हम ये मांग करते हैं कि पुलिस थाने में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, उनका इस घटना में किस तरह का रोल था, उसकी एक इंडिपेंडेंट कोर्ट मैंडेटेड कमेटी के साथ जांच कराई जाए। हम ये भी मांग करते हैं कि जब तक किसी भी प्रकार का परिवार को सिक्योरिटी थ्रेट रहे, तब तक राउंड द क्लॉक अब्दुल के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हम लोग अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई, तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाएगा। एक बार फिर से भाजपा के गुंडे, चाहे वो राजस्थान की बात हो चाहे बंगाल की बात हो, ये लोग अपनी गुंडागर्दी से बाज नहीं आने वाले। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इनको हम ये बता देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा ये गुंडागर्दी, ये हिंसा नहीं चलने वाली। अब इस देश में शिक्षा की बात होगी, इस देश में मुद्दे की बात होगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अब्दुल इसके बाद फिर से स्कूल ठीक करो कैंपेन को लीड करेगा और इस बार ना सिर्फ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट बल्कि पूरे बंगाल में अब्दुल और उसकी टीम घूमेगी और स्कूल ठीक कराने के लिए सरकार से बात करेगी। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं। पुलिस की अभी तक जो कार्रवाई
इसमें कुछ गिरफ्तार किया गया, कुछ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया, ऐसा पुलिस का दावा है। तो ये जो 8 गिरफ्तार हुआ उसमें भाजपा का लीडर शामिल है। तो